تو جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ لوکی سیریز کے آنے کے بعد سے مارول سنیمیٹک یونیورس کے اندر بہت ہی زیادہ چینجز ہو چکی ہیں، جس میں سب سے بڑی چینجز جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کری تھی وہ تھی ملٹی ورس۔ اب جب سے میں نے وہ اپنی ملٹی ورس والی ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر ہم نے لوکی سیریز کے اوپر ڈسکشن کری تھی، تو آپ لوگوں کے ڈی ایمز کے اندر میسیجز آنے لگ گئے کہ یہ ملٹی ورس آخرکار ایم سی یو کے اندر کس طرح سے کام کرتی ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے بھی ایگزسٹ ہونی ہی چاہیے تھی، کیونکہ ایم سی یو تو شروع سے ایک ملٹی ورس کا حصہ ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر اسٹرینج کے اندر ہم نے اینشینٹ ون کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس طرح کے اور بھی اس طرح کے ریلمز ہیں، اس طرح کی ریالٹیز ہیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس سے بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب تک ایم سی یو کے اندر جو ہے ملٹی ورس ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن لوکی سیریز کے آنے کے بعد ہمیں اس بارے میں پتہ چلا کہ ملٹی ورس ایگزسٹ تو کر سکتی تھی، لیکن آج تک اس کو کرنے نہیں دیا گیا، اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ہی ہو ریمینز تھا، جس نے اپنی ٹی وی اے بنائی تھی اور اس کے ذریعے ہی اس نے کبھی ملٹی ورس بننے نہیں دی، اور جو کوئی بھی چیز ملٹی ورس بنا سکتی تھی وہ لوگ اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو ویسے تو میں آلریڈی جو ہوں ملٹی ورس کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں نو یور یونیورس کے ایپیسوڈ 2 کے اندر، تو اگر آپ نے ابھی تک وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ضرور ڈال دوں گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ملٹی ورس کے اوپر کہ جو ہمارے نئے ویورز آ رہے ہیں جو کہ ایم سی یو کو دیکھ رہے ہیں، جو کامکس نہیں پڑھتے ہیں، ان کو آسان لفظوں میں ملٹی ورس سمجھانا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ سو گائز، دس از پیٹ ٹائیگر، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخرکار یہ ملٹی ورس کس بلا کا نام ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور ملٹی ورس کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو کہ اب ہم فیوچر پروجیکٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی اور بات کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سائنس کا گیان پھیلنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک یونیورس ہے جس کے اندر الگ الگ گیلیکسیز ہیں، سولار سسٹمز ہیں، پلینٹس ہیں، اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پہ ایلینز بھی رہتے ہیں جن کا آج تک ہمیں کوئی نام و نشان تو ملا نہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ہماری پوری کی پوری یونیورس ہے جس کے اندر ساری کی ساری وہ چیزیں شامل ہیں جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جس کو آج تک سائنس نے پتا کرا ہے۔ لیکن کچھ سائنٹسٹ کا ایسا بھی ماننا ہے کہ اس طرح کی ایک اور یونیورس بھی کہیں اور موجود ہے جو کہ سیم ہماری یونیورس جیسی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت چینجز ہیں۔ وہاں پہ فزکس کے لاز جو ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہیں، وہاں پہ گریویٹی الگ طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن وہ آل دو ہے ہی بالکل ہمارے جیسے ایک کاپی کی طرح۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سائنٹسٹ نے سپورٹ بھی کرا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو صرف میتھس اور لیجنڈس کی طرح ہی مانتے ہیں، اور اس کے اوپر بات کرنا بھی سمجھتے ہیں ایک بیوقوفی ہے اور بچوں کا کھیل ہے۔ لیکن جب سے پاپ کلچر یعنی کہ سائنس فکشن موویز وغیرہ آنا شروع ہوئی تو تب سے ملٹی ورس کے کانسیپٹ کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرا اثر پڑا ہے، کیونکہ ہر ایک مووی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ ریئلٹیز، پیرالل ورلڈ، پیرالل یونیورسز، یہ سارے کے سارے الگ الگ نام ایک ہی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایک اور دنیا موجود ہے جس کے اندر ہم سے تھوڑی سی ریئلٹی چینج ہو سکتی ہے۔ تو ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ہم اپنے یونیورس کے تھوڑے سے کانسیپٹ کو سمجھ لیں کامکس اور ان ساری کی ساری ایم سی یو موویز کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یونیورس موجود ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اسی ایک یونیورس کے اندر یہ الگ الگ ڈائمینشنز بھی موجود ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایسگارڈ جو ہے وہ دراصل ایک طرح کی ڈائمینشن ہے جس کو ڈائریکٹلی ایکسس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جس کو بائی فراسٹ کے ذریعے ایکسس کیا جاتا ہے، اور وہ ہماری اسی کنٹینیوٹی کے اندر شامل ہے۔ لیکن جب آلٹرنیٹ ریئلٹی کی بات ہوگی تو وہاں پہ بھی اس کا ایک اپنا ایسگارڈ ہوگا، اس کی ایک الگ ڈائمینشن ہوگی، اور وہاں پہ اس کی تھوڑی سی ریئلٹی چینج ضرور ہوگی۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آلٹرنیٹ یونیورسز اور آلٹرنیٹ ڈائمینشنز کے بارے میں۔ تو ڈائمینشن دراصل میں ایک پوری کی پوری یونیورس نہیں کہنا چاہوں گا، بلکہ ڈائمینشن جو ہوتی ہے وہ یونیورس کے اندر ایک پاکٹ ریئلٹی ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہماری ہی یونیورس کا حصہ ہے۔ ان شارٹ اگر آپ ڈائمینشن کے ٹرم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ہماری یونیورس کے اندر ہی ہیں۔ اگر ہماری یونیورس کو کچھ ہوگا تو اس کے ساتھ ڈائمینشن برباد ہو جائے گی، لیکن اگر ڈائمینشن برباد ہوتی ہے تو اس سے ہماری یونیورس کے اوپر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ تو ابھی تو ہم نے بات کر لی یونیورس اور ڈائمینشن کے اوپر، تو ہم اپنے اسی سرکل سے تھوڑا سا اور باہر آ جائیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہماری یونیورس کی طرح اور بھی زیادہ یونیورسز موجود ہیں جس کو کہا جاتا ہے ملٹی ورس۔ تو ملٹی ورس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک سے زیادہ یونیورس، یونی کا مطلب ایک اور ورس کا مطلب جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور ملٹی ورس کا مطلب کہ ایک سے زیادہ یونیورسز جس کے اندر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی ایک طرح کی ملٹی ورس کے اندر ہی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہ چلا ہو کہ ان ملٹی ورس کو ایکسیس کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو لوگوں کے دل میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دراصل ملٹی ورس بنتی کیسے ہے، اور ملٹی ورس بنانے کا کیا فائدہ ہے، اس کو موویز اور کامکس وغیرہ کے اندر اتنا کیوں جو ہے ہائپ دے کے سکھایا جاتا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ملٹی ورس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی سٹوری کے الگ الگ روپ دکھا سکتے ہیں، اور آپ کی مین سٹوری کے اوپر ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو چلیے میں اس کو آسان کر کے آپ کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ تو مارول کامکس اور مارول سنیمیٹک یونیورس میں ملٹی ورس جس طرح سے کام کرتی ہے اس کو اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے، اور اس کو برانچ تھیوری کے نام سے بھی بتایا جاتا ہے۔ تو بالفرض آپ سمجھ لیجیے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں ایک ملٹی ورس کے ٹاپک کے اوپر، لیکن جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وقت میرے پاس دو چوائسز تھی، یا تو مجھے ویڈیو آج بنانی ہے یا تو میں یہ ویڈیو نہیں بناؤں گا اور اس کو اسکپ کر دوں گا۔ اگر میں نے اس ویڈیو کو اسکپ کر دیا ہوتا تو وہ ایک آلٹرنیٹ ریئلٹی بن چکی ہوتی جس کے اندر میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور میں اپنا کوئی اور سا کام کر رہا ہوتا، شاید میں نیچے جا کے کرکٹ کھیل رہا ہوتا یا اپنے پیپروں کی تیاری کر رہا ہوتا۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کرا کہ میں اس ویڈیو کو بناؤں گا، تو جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں اپنی اسی یونیورس کے اندر بیٹھ کے بنا رہا ہوں جس یونیورس کے اندر میں رہ رہا ہوں۔
लेकिन एक ऐसी कोई अल्टरनेट यूनिवर्स मौजूद है जहाँ पे स्पीड टाइगर ने जो है आज वीडियो नहीं बनाई होगी और वो कुछ और काम कर रहा होगा। तो इसी तरह अगर आप अंदाजा लगाएं तो हर एक सेकंड के ऊपर हर एक अल्टरनेट रियलिटी और यूनिवर्स बन रही है। मतलब किसी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के कोई ऐसे छोटे से डिसीजन की वजह से एक पूरी की पूरी अल्टरनेट रियलिटी बन सकती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो सकती हैं और बहुत स्लाइटली चेंजेस भी हो सकती हैं। तो इस तरह से तो आपका अगला सवाल ये होगा कि इस तरह से तो पता नहीं कितनी ज़्यादा मल्टीवर्सेस होंगी, क्योंकि हर पल हर एक इंसान जब इतने डिसीजन लेता है तो इस पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने लोग कितने डिसीजन ले रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी वजह से मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है कि इन्फिनाइट वर्ल्ड्स, यानी कि ये इन्फिनाइट दुनिया है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है, आप इसको कभी गिन नहीं सकते हैं। जिस तरह आसमान के अंदर सितारे आप कभी गिन नहीं सकते हैं, उसी तरह इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर कितनी यूनिवर्सेस मौजूद हैं आप उनको भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सेस जो है एक अलग अलग छोटे छोटे डिसीजंस के ऊपर बेस्ड करती हैं और वो डिसीजंस करोड़ों लाखों अरबों एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के अंदर हो सकते हैं। तो अब जैसा कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हम मल्टीवर्स को देख ही चुके हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉमिक्स के साथ भी जोड़ जोड़ के इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा ताकि उसके जरिए आपको पता चल सके कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर एमसीयू के क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको यूनिवर्स बताया, डायमेंशंस बताई, मल्टीवर्स बताई, अब अगर हम इसी मल्टीवर्स को एक कलेक्शन बना दें और एक जगह हम जमा कर दें सारी की सारी मल्टीवर्सेस को, तो वो कहलाता है मेगावर्स। क्योंकि मार्वल की ऑफिशियल हैंडबुक में इसको एक टर्म दिया गया है कि जो सारी की सारी मल्टीवर्सेस मौजूद हैं उन सबका जब कलेक्शन एक जगह जमा कर लिया जाए तो उसको टर्म दी जाती है मेगावर्स। यानी कि उस मेगावर्स के अंदर मार्वल की जितनी भी मल्टीवर्सेस हैं, एमसीयू वाली यूनिवर्स हो गई, कॉमिक वाली यूनिवर्स हो गई या और भी दूसरी अल्टरनेट यूनिवर्सेस हो गई, वो सब एक मेगावर्स का हिस्सा हैं जो कि मार्वल मेगावर्स है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक जबरदस्त किस्म की एक और जगह पाई जाती है जिसको बियॉन्ड वर्स कहा जाता है, और बियॉन्ड वर्स एक ऐसी जगह बताई जाती है जो कि इस मल्टीवर्स के यानी कि मेगावर्स के सर्कल से बाहर है, और वो जो है पूरी की पूरी मल्टीवर्स को कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, या फिर बियॉन्ड वर्स के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स या मेगावर्स की सारे के सारे लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। और इस बियॉन्ड वर्स के अंदर जो रहते हैं लोग वो कोई और नहीं बल्कि बियॉन्डर्स कहलाते हैं। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है बियॉन्डर्स एक ऐसी रेस है जो कि मोस्ट पावरफुल रेस है। उसका एक एक मेंबर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। तो उसके सिर्फ 3 मेंबर्स ने मिलकर जो है लिविंग ट्राइब्यूनल को जान से मार डाला था। उसके साथ साथ पूरे के पूरे कॉमिक्स के अंदर जितने सेलेस्टियल्स थे, कॉस्मिक एंटिटीज थी, उन सब का काम तमाम कर दिया था सिर्फ 3 बियॉन्डर्स ने ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मल्टीवर्स के बाहर एक जगह है बियॉन्ड वर्स, इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब जैसा कि मल्टीवर्स की ब्रांचेस बनना शुरू हो गई हमारे एमसीयू के अंदर भी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़े ही टाइम की बात है कि हमें जो है बहुत जल्द बियॉन्ड वर्स से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और हम बियॉन्डर्स को एमसीयू के अंदर देखें जो कि एक अलग ही पावर लेवल के ऊपर होते हैं। अगर हम अपने मेगावर्स, बियॉन्ड वर्स, इन सारी की सारी चीज़ों से बाहर निकले तो हमारे पास एक और सर्कल आता है जो कि मार्वल कॉमिक्स में और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसके बाद जो टर्म आता है हमारे पास वो होता है ओमनीवर्स। अब मैं जानता हूँ कि जो लोग बेंटन ओमनीवर्स देखते आए हैं उनको ये टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग उनके पास अभी भी नहीं होगी। तो ओमनीवर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। समझ लीजिए कि अब तक हम जितने भी सर्कल्स देखते हैं यूनिवर्स के, मल्टीवर्स के, मेगावर्स के, बियॉन्ड वर्स के, उन सबसे बाहर एक और सर्कल मौजूद है जो कि ओमनीवर्स है। लेकिन इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स के सर्कल के अंदर हमारी अलग अलग मल्टीवर्सेस और मेगावर्सेस मौजूद है। अब समझ लीजिए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सर्कल है जिसको ओमनीवर्स कहा गया है। अब इसी के अंदर जो है हमारे पास मार्वल की पूरी मल्टीवर्स मौजूद है, यानी होल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल कॉमिक्स सब कुछ जो एक जगह मौजूद है। उसी के साथ हमारे पास डीसी की पूरी यूनिवर्स मौजूद है, यानी डीसी कॉमिक्स, डीसीयू। इसी के साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स मौजूद है, टीएमएनटी यूनिवर्स मौजूद है, और इसी के साथ हमारे पास जो फास्ट एंड द फ्यूरियस की यूनिवर्स भी मौजूद है, जिसके अंदर से फैमिली चीखने की आवाज़ें आ रही है ना जाने क्यों। लेकिन ओमनीवर्स का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग को आज तक पता है वो सब इस ओमनीवर्स का हिस्सा हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर एक छोटा सर्कल ऐसा भी होगा जो कि हमारी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि देखा जाए तो हम भी जो है एक ओमनीवर्स का हिस्सा हैं, और यहीं कहीं शायद आसपास हमारे पास मार्वल यूनिवर्स भी मौजूद है जिसको अभी तक हम एक्सेस नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि साइंस कभी इतनी ज़्यादा तरक्की कर ले कि वो इन सारी की सारी मल्टीवर्सेस के बीच के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ सके और दूसरी डायमेंशन या दूसरी मल्टीवर्सेस के अंदर एक्सेस कर सकें। लेकिन ये सारी बातें इस वक्त सिर्फ ख्याली बातें हैं, इनको हम सिर्फ सोच सकते हैं, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी तक ये सारी की सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई हैं और इनका साइंटिफिकली प्रूव होना काफ़ी मुश्किल भी है। लेकिन पॉप कल्चर के अंदर बात की जाए तो ये सारी की सारी थ्योरीज और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, जिस वजह से व्यूअर्स इससे जुड़ पाते हैं। तो अब जैसा कि मैं आपको मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ओमनीवर्स, मेगावर्स सब कुछ समझा चुका हूँ, तो हम बात कर लेते हैं कुछ कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर पाई जाती है और उनको अनकरीब जो है हम लोग अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग ट्राइब्यूनल का कैरेक्टर है जो कि इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स वाली सिचुएशन में बहुत ठीक तरीके से बैठता है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ नो योर यूनिवर्स के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लिविंग ट्राइब्यूनल दरअसल मार्वल मल्टीवर्स का जज है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी एक यूनिवर्स के अंदर जैसे मेरा एक वर्जन है तो दूसरी यूनिवर्स के अंदर मेरा ही एक और वर्जन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इसी तरह आयरन मैन का अलग अलग वर्जन हर एक अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल जो शख्स है वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर
अंदर सिर्फ एक ही मौजूद है, मतलब हर जगह उसका एक ही वर्जन मौजूद है, वो एक ही है जो कि सारी की सारी मल्टीवर्सेस के ऊपर नजर रखता है। और उसका काम बेसिकली ये है कि अगर मैजिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेगा। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है कि वो एक इशारे में जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को नाकाम कर सकता है, उसका कोई काम नहीं रहेगा और वो सिर्फ पत्थर बन जाएंगे या पेपर वेट्स बन जाएंगे। तो अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि मल्टीवर्स एमसीयू के अंदर लोकी सीरीज के अंदर बहुत तेजी से बन चुकी है, ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो शायद यही सही वक्त है कि लिविंग ट्राइब्यूनल को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और बताया जाए कि इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पावर मौजूद है जो कि इसकी निगरानी कर रही है, और वो लिविंग ट्राइब्यूनल है। अब लिविंग ट्राइब्यूनल के दिखने के जो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल का जो कैरेक्टर है वो सबसे पहली बार कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक्स के अंदर आया था, और मूवीज के अंदर भी मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज के ही कॉमिक्स के अंदर उसको आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इटर्निटी कॉस्मिक एंटिटी है जो कि एक यूनिवर्स को प्रेजेंट कर रही होती है, इसका जो पूरा टाइम इन स्पेस होता है वो इटसेल्फ इटर्निटी कहलाता है। लेकिन एक मल्टीवर्सल इटर्निटी भी है जो कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स के स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो मे भी इन फ्यूचर हम लोग जो है इस वाली कॉस्मिक एंटिटी को भी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कॉस्मिक एंटिटीज की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, और उसमें से कुछ भी अगर हम देख लें एमसीयू के अंदर तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल और मल्टीवर्सल इटर्निटी ऐसी कॉस्मिक एंटिटीज हैं जो कि इस मल्टीवर्स वाली चीज के ऊपर ज्यादा बेस्ड करती है, तो इसलिए मैंने इनका जिक्र आपके साथ यहाँ पे करा है। तो अब जब से लोकी सीरीज के जरिए मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो अब हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम उन स्टोरीज को देख सकते हैं जिनको हम कभी इमेजिन किया करते थे, वो भी व्हाट इफ सीरीज के जरिए, कि अगर आयरन मैन ने ये किया होता और ये ना किया होता तो क्या होता, अगर कैप्टन अमेरिका ने सुपर सोलर सीरम ना लिया होता तो क्या होता। तो ये सारी की सारी वो छोटी छोटी चीजें जिनको हम कभी इमेजिन किया करते थे, अब वो हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सिनेरियोज जो है वो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी का हिस्सा है। उससे हमारी मेन टाइमलाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी मेन कॉन्टिन्यूटी है। तो अब देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि किस तरह से एमसीयू के अंदर अगले 10 साल का जो कंटेंट होने वाला है वो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स और मल्टीवर्सल वॉर के ऊपर होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ से बिल्डअप करते हुए सीक्रेट वॉर की तरफ जा रही हैं, जिसको जॉ रूसो और एंथनी रूसो ने जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे टीज भी किया था कि कभी अगर सीक्रेट वॉर्स की मूवी बनी तो वो उसको जो है डायरेक्ट करने के लिए जरूर वापसी आएंगे। और मेरी नजर में सीक्रेट वॉर्स का जो कॉमिक बुक इवेंट है वो आज तक का सबसे जबरदस्त इवेंट है जिसको आज तक मैंने पढ़ा है। तो मैं इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स का इवेंट हमें एमसीयू के अंदर भी देखने को मिले, सेम उसी लेवल के ऊपर जिस तरह हम कॉमिक्स के अंदर उसको देखते आए हैं। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी जो कि आपको समझाना जरूरी थी। तो आई होप कि आपको यहाँ से मल्टीवर्स, यूनिवर्स और अलग अलग दूसरी चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, और अब आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपको पता चलता रहेगा कि मल्टीवर्स किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से बनती है और उसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेज मौजूद हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया सीखने को मिला है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इस तरह की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर कवर करते रहते हैं। तो आज बेसिकली फेस कैम वीडियो करने का मकसद ये था ताकि आपको चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की जा सके। मैंने देखा है कि अक्सर जिन वीडियोस के ऊपर फेस कैम नहीं होता है उनको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने आज एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो हम फ्यूचर में इसी तरह फेस कैम वीडियोस ही बनाया करेंगे आप लोगों की तरह। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ये सेटअप वगैरह इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आप मुझे फिर भी बताइएगा कि आगे फेस कैम वीडियो में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो के बारे से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।